ناظرین ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں لاہور میں حلقہ NA 129 کے ضمنی انتخابات کی. بریک سے پہلے یہ ڈسکشن جاری تھی. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی لیا کہ وہ اس انتخابات میں اس طریقے سے ایکٹیو نظر نہیں آئی. مسلم لیگ نواز کا موقف کے لیے ہمارے ساتھ عظمیٰ کاردار صاحب رکن صوبائی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. میڈم بہت شکریہ وقت دینے کا. جبکہ ہمیں پینل میں جوائن کریں نور اللہ صاحب سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. نور اللہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. میڈم آپ سے پہلے آغاز کریں گے. ابھی رانا شہباز صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کی حکومت ہے, آپ ہمیں الیکشن لڑنے نہیں دے رہے, آپ ہمارے MPs اس حلقے میں جا نہیں سکتے, لوگوں کو کیمپین کرنے نہیں دی گئی, خوف کا ماحول آپ نے کریٹ کر لیا ہے. نہ صرف اس اسپیسیفکلی الیکشن کے لیے بلکہ اوور آل اس سسٹم کے لیے آپ نے بہت زیادہ فضا جو ہے وہ خوفزدہ کر دی ہے. ایسا کیوں کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. ذرا دیکھیں نا, آپ ان کو شہباز صاحب کو آپ نے کہنا تھا کہ آپ کیوں نہیں ان کے ساتھ نکلے اس حلقے میں NA 129 کی. میں آج سارا دن وہاں پہ تھی. ٹھیک ہے, نہایت پرامن, سیکیورٹی بالکل صحیح, لوگ اپنی خوشی سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی کسی پہ پابندی نہیں. اب ان کے کیمپوں میں سناٹا چھایا ہوا ہے, الو بول رہے ہیں, کوئی بندہ ہی پرندہ نہیں, کوئی ہے ہی نہیں. اب دیکھیں نا, ان کی تنظیم تتر بتر ہو گئی, یہ ختم ہو گئے ہیں. ان کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے الیکشن لڑنے کا, اس میں بہت سارے لوگوں کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. کینڈیڈیٹ سے لے کے پوری تنظیم سے لے کے نیچے تک آپ کو موبلائز کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. ان کے لیے تو کوئی اب نکلتا نہیں ہے. دیکھیں نا, 3 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے مار کھائی, اور یہ ایکچولی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. اچھا, ہاں بالکل, یہ بھاگے ہوئے میدان. آپ نے دیکھا ہے کئی کوئی اس طرح کا کوئی بوائیکاٹ جمہوریت میں نہیں ہوتا. آپ ٹھک کے مقابلہ کرتے ہیں, آپ میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتے ہیں. یہ اس لیے بھاگے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا پول کھل گیا, کوئی ان کے لیے اب نکلتا نہیں ہے. ایک تو میاں محمد نواز شریف سے لوگ محبت کرتے ہیں, یہ ان کا قلعہ تھا 129. اچھا, 2018 میں چھینا گیا. جی بالکل, 24 میں بھی چھینا گیا تھا, یہ بالکل چھینا گیا تھا. اور نمبر 2, ان کی جو بیٹی ہیں مریم نواز صاحبہ, وہ انہوں نے دن رات محنت کی. ان کو محبت ہے پنجاب کے لوگوں سے. 90 سے زیادہ انیشیٹیوز انہوں نے انٹروڈیوس کیے, جو خاص طور پہ جو ہمارا جو کمزور طبقہ ہے ان کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے. تو یہ سب کو نظر آتا ہے. آپ کو ستھرا پنجاب نظر آ رہا ہے, آپ کو 20,000 کلومیٹر سڑکیں جو بنائی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. آپ کو یہ جو ہمت کارڈ, کسان کارڈ, کلینک آن ویلز, اب کتنے میں آپ کو منصوبوں کا نام بتاؤں جس سے لوگوں کو, کروڑوں لوگوں کو پنجاب کے فائدہ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مسلم لیگ نواز کی صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے. عظمیٰ صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کا. سچویشن یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں انتخابات ہونے جا رہا ہے. نظریں لاہور کے حلقہ NA 129 پہ بھی ہیں. 8 فروری کے بعد یہ پہلا ضمنی انتخاب ہے جو ہو رہا ہے. تحریک انصاف کے رانا شہباز صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو اتنی سختی کر دی کہ عام آدمی تو دور کی بات ہے کہ رکن صوبائی اسمبلی اس حلقے میں جا کے کیمپین نہیں کر سکتا. تو یہ کیسا الیکشن کروا رہی ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو گزارش یہ ہے کہ یہ پہلا ضمنی الیکشن نہیں ہے. اس سے پہلے مریدکے میں اور سمبریال میں 2 صوبائی اسمبلی کے ضمنی الیکشن ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, جو اس وقت بھی دونوں الحمدللہ مسلم لیگ میں جیتے تھے. لیکن لاہور میں قطع کلامی ماں, میرا مقصد تھا کہ لاہور میں پہلا ضمنی انتخاب ہے کیونکہ لاہور کو فوکس کیا ہوا ہے نا ہم نے اس وقت. جی میں آ رہی ہوں. پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی رکن صوبائی اسمبلی کسی وقت مقدمے میں مطلوب ہے یا کوئی ایسا شخص جو جس کے خلاف کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس کو سزا ہو چکی ہے, تو ان کو پھر پھول ڈالے ان کے گلے میں یا کیا کیا جائے؟ میرا پہلا سوال یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عجیب آدھا تیتر آدھا بٹیر کے بعد ہی اس پارٹی کا یہ حال ہوا ہے. باقی جگہوں پر جہاں امیدوار نہیں مل رہے تھے وہاں پر جو ہے الیکشن نہیں لڑنا, اور 2 سیٹوں پہ ہم نے جو الیکشن لڑنا ہے. یہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ آپ یہ پوری الیکشن کیمپین جو ہے انہوں نے مظلومیت, محرومیت اور ہر طرح کا کارڈ استعمال کر کے دیکھ لیا. لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو کارکردگی ہے, جو 1.5 سال کے اندر انہوں نے لوگوں کو ڈیلیور کیا ہے ہر شعبہ زندگی کے اندر, وہ تعلیم ہے, وہ صحت ہے, وہ بچوں کے لیے اسکالرشپس ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, گرین بسز ہیں, اس کے بعد جیرانی پروگرام ہے, ستھرا پنجاب ہے. اور اس وقت پنجاب کی اگزامپل جو ہے وہ پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں دی جاتی ہے, اور موازنہ ہوتا ہے پنجاب کا باقی صوبوں کے ساتھ ان کی کارکردگی. سو مجھے یہ کہتے ہوئے اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتی ہوں
کہ قوم جو ہے وہ اب کارکردگی اور خدمت کو دیکھ کر ووٹ ڈال رہی ہے، اور اس کا نتیجہ آپ اس وقت اپنی ٹی وی اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں. اور میری اطلاعات کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ لینڈ سلائڈنگ وکٹری مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہر حلقے سے حاصل کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب حتمی نتائج آئیں گے تو میری یہ جو خواہش، میری امید یہ صحیح ثابت ہوگی، اور یہ اس بات پہ اسٹیمپ کرتی ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے جو محنت، جو خدمت کی ہے پنجاب کے لوگوں کی، اس کو ریسیپروکیٹ کیا ہے پنجاب کے لوگوں نے، اور ان کو یہ ووٹ ڈال کر ثابت کیا ہے کہ وہ پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے میڈم، آپ کے تو ڈیفینیٹلی سٹیکس موجود ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف پہلی مرتبہ اس منصب پہ آئیں، پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی صاحبزادی، آپ کا تو فوکس موجود ہے اور آپ نے تو یہ سیٹیں نکالنی ہیں. لیکن دوسری طرف باقی سیاسی جماعتوں کی، چاہے وہ آپ کے مخالف سے، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ نے الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا، آپ نے سختی کی گئی. دین اگین میرا ایک سوال اس میں یہ کہ جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ اس وقت اتنا کم نظر آ رہا ہے، کیا یہ پورے سسٹم کے لیے، تمام سیاسی جماعتوں کے لیے، آپ کے لیے بھی بطور سیاسی ورکر یہ سوال ہے کہ کیا یہ تھوڑا سا خوفناک صورتحال نہیں اختیار کر رہا کہ لوگ نکل ہی نہیں رہے؟ ضمنی انتخابات میں اوور آل ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے، لیکن آج جو ہمارے رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں وہ تو بہت مایوسی دکھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لوگ بہت کم نکل رہے ہیں. ایسا کسی ضمنی انتخاب میں آج تک دیکھنے میں نہیں آیا. نہیں، میرا نہیں خیال. جب تک حتمی نتائج نہیں آ جاتے تب تک آپ ٹرن آؤٹ کا فیصلہ 8 بجے نہیں کر سکتے ہیں بیٹھ کے. شروع میں یقیناً دن کے وقت اور سنڈے تھا تو ظاہر ہے لتھارجک ہوتے ہیں ہم لوگ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور ہر ضمنی الیکشن میں ویسے بھی ٹرن آؤٹ جنرل الیکشن سے کم ہوتا ہے، بالکل کم ہوتا ہے. لیکن جو آخری 3 گھنٹے تھے اس میں بھرپور ٹرن آؤٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا. اور خاص طور پر ہمارا جو ووٹر ہے، جو گرین بسٹ کے لیے ووٹ ڈالنا چاہتا تھا، جو فری ادویات کے لیے ووٹ ڈالنا چاہتا تھا، جو ستھرا پنجاب کے لیے ووٹ ڈالنا چاہتا تھا، جو امن و امان کی صورتحال کے لیے ووٹ ڈالنا چاہتا تھا، وہ نکلا اور نکل کے اس نے ووٹ ڈالا، اور وہی اس وقت آپ کو ریزلٹس کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. لیکن وہ لوگ جو ایک طرف کہہ رہے تھے ہم الیکشن نہیں لڑ رہے، دوسری طرف بھرپور الیکشن لڑ رہے تھے، پوری پارٹی ہر طرح کی سپورٹ جو ہے وہ اپنی پارٹی کی طرف سے وہ دکھانے کی کوشش بھی کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ووٹر کو نہیں نکال سکے تو یہ ان کے لیے سوال ہے. جہاں تک یہ بات ہے، یہ تو ہمیشہ رونا دھونا جو ہار جاتا ہے اس نے یہی کہنا ہوتا ہے کہ جی وہ ہم ہار گئے. لیکن میں آپ کو یاد کرانا چاہتی ہوں کہ جب ان کی دور حکومت تھا تو مسلم لیگ نون نے نہ صرف تمام جو بائی الیکشنز ہیں اس وقت اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی جیتے تھے جب ہم زیر عطاب تھے، اور ہم نے بلدیاتی انتخابات بھی جیتے تھے کے پی کے اندر. سو اگر تو آپ کی جو مطلب سیاست ہے وہ فساد کے ارد گرد نہ ہو، وہ ہر وقت ملک میں انتشار کے ارد گرد نہ ہو، اگر لوگوں کو ایک امید، ایک حوصلہ اور ملک کو آگے بڑھنے کی اگر قیادت کے اندر ابیلٹی نظر آتی ہو پھر لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. لیکن جب یہ نظر آئے کہ پھوکوں کے ساتھ اور جادو ٹونوں کے اوپر ملک چلایا جاتا رہا تھا، اور اب بھی جو ہے وہ شاید اسی قسم کے حالات ہیں کہ جس پہ پھونک مار دی جائے گی، جس پہ ہاتھ رکھ دیا جائے وہ وزیر اعلیٰ آئے گا، دوسرا چلا جائے گا، تو پھر لوگ آپ کو ووٹ کیوں ڈالیں گے؟ پھر سوال یہ ہے کہ کیا 4.5 سال خود حکومت میں تھے تب لوگوں کو کیا دیا، اور اب پچھلے 12-13 سال سے ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، وہاں پہ لوگوں کا کیا حال ہے، وہاں لوگوں کو کیا دیا. تو یہ بہت اچھا ٹرینڈ ہے کہ لوگ لیکن میڈم بڑا معصومانہ سوال یہ ہے کہ 2024 میں اسی سیاسی جماعت کا ووٹر خاموشی سے بڑی تعداد میں باہر نکل رہا تھا، وہ ووٹ ڈال رہا تھا، اور اس مرتبہ 1 سال 1.5 سال میں ایسا کیا ہو گیا کہ وہ ووٹر اب نکل ہی نہیں رہا؟ تو یہیں کہیں نہ کہیں تو خوف کی فضائی ایلیمنٹ موجود ہے نا کہ وہ اب بیچارہ نکل ہی نہیں رہا، کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے ووٹ ہی نہیں ڈالنا. بھائی میں گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے مطابق آدھا گلاس جو ہے وہ خالی ہے تو میں اس کا کچھ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرے مطابق آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، اور اس لیے کہ جو اس وقت لوگ نکلے تھے کہ اس وقت بقول ان کے ڈر اور خوف کی کیفیت نہیں تھی جو ان کا نیریٹو ہے. سو یہ ڈر اور خوف کی کیفیت مجھے دکھائیں نا، مجھے بتائیں تو صحیح کہاں ہے، کہاں کسی کو ووٹ ڈالنا شروع کر دیا ہے، کہیں پر جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ ہمارے جو پرچیاں جو ہے وہ بھیج دیا جاتا تھا ووٹر کو. ہم نے تو تب بھی لیکچر پڑھا تھا اور کھڑے ہو کے میدان میں لڑا تھا. تو یہ ایک نیریٹو، فیک نیریٹو، یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک فیک ڈرامے بازی یہ سوشل میڈیا پہ چلتی ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز اس سے وہ نہیں کرتی. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کیا ہوا، میں نے ابھی آپ کو ایگزامپلز بتائی ہیں، کچھ ایگزامپلز کہ 1.5 سال میں کیا ہوا ہے. 1.5 سال میں مریم نواز شریف کی حکومت آئی ہے.
جس نے 18-18 20-20 گھنٹے کام کیا ہے, جس نے لوگوں کو ادویات دی ہیں, جس نے کسانوں کو ٹریکٹر دیے ہیں, جس نے جو ہے اب 1,10,000 گھر بنائے ہیں 10 مہینے کے اندر, جس نے ستھرا پنجاب کے ذریعے گلی محلے صاف کیے ہیں, جس نے جو ہے وہ بچوں کو لیپ ٹاپس اور اسکالرشپ دیے ہیں. تو مطلب آپ کے مطابق اگر یہ کام جو ہے, یہ اگر بالکل ہی ہماری قوم جو ہے آپ کے جو آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ ان کو بالکل ہی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کو صرف جو ہے وہ جذباتی قسم کی تقریریں, فیک سوشل میڈیا پوسٹ اور ناکدہ کوکا جیسے گانے جو ہیں, اگر وہ ان کے حالات بدل سکتے ہیں تو اس وقت یہ شاید چل گیا تھا, اب نہیں چلتا. اور ویسے بھی 2024 کے الیکشن کے اندر جو لوگ نکلے اور جن کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ ان کو ووٹ ڈلے, ان ووٹوں کے مطابق ان کو جتنی سیٹیں ملی تھی, ہمیں تو پھر بھی ہم نے اس وقت ہم نے بھی تمام تر نامساعد حالات کے باوجود ہم نے مقابلے کیے تھے اور ہر وقت میں کیے ہیں. یہ ڈر کے بھاگ جانا اور یہ کہنا کہ جی وہ ہمیں اب ان کو کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیا ان انتخابات کے بعد اب لوکل باڈیز الیکشنز کا راستہ ہموار ہونا ہو جائے گا؟ کیونکہ کچھ مبصرین یہ لکھ رہے تھے کہ ان انتخابات کا انتظار کیا جائے گا, آؤٹ پٹ رزلٹ دیکھا جائے گا اور اس کے بعد پھر لوکل باڈیز کا فیصلہ ہوگا کہ واقعی انتخابات میں جانا ہے یا نہیں جانا. آپ صوبائی وزیر اطلاعات ہیں, کیا اس کے بعد لوکل باڈیز کے لیے تیار ہیں لوگ؟ میرا خیال ہے آپ کے جو مبصرین ہیں وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بریگیڈ سے کافی مروب لگتے ہیں مجھے. ہاں, کیونکہ آپ کی اطلاع کے لیے ہم نے بل بھی پاس کر لیا ہوا ہے پنجاب اسمبلی سے, اور ہم نے الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ تمام تر اس کے اوپر چھوڑ دیا ہے, کورٹ کے ان کے اندر گیند ہے کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ ہمیں اسکیڈول بنا کے دیں. اور ہم پہلے بھی بلدیاتی الیکشن کے لیے تیار تھے, ہم آج بھی بلدیاتی الیکشن کے لیے تیار ہیں, کل ہو الیکشن ہم کل بھی کرانے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ گزارش یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو آج بلدیاتی الیکشن مانگ رہے ہیں نا, وہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں آ کر شب خون مارا تھا بلدیاتی اداروں کے اوپر. 1.5 سال اس ملک کے اندر جو ہے وہ بلدیاتی ادارے نہیں رہے, نظام موجود تھا, اس کو ختم کر دیا گیا تھا. ہم کرا رہے ہیں, پہلے بھی نون لیگ نے ہمیشہ بلدیاتی الیکشن کرائے ہیں, اس دور حکومت بھی انشاءاللہ تعالی ہم بلدیاتی الیکشن کرا رہے ہیں. بہت شکریہ عظمیٰ بخاری صاحب, ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات, آپ نے ان کی گفتگو سے. نور اللہ صاحب, آپ کا ٹیک میں چاہوں گا اس پہ. عظمیٰ کاردار صاحبہ کی گفتگو بھی آپ نے سن لی اور گورنمنٹ کا موقف دینے کے لیے عظمیٰ بخاری صاحبہ کی بھی گفتگو آپ نے سن لی, جبکہ دوسری جانب یہ کہا گیا کہ خوف کی فضا ہے, ہمیں اس طرح انتخاب لڑنے دیا گیا, جبکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک طرف بائیکاٹ ہے اور اس حلقے میں ایک حلقے میں الیکشن لڑا بھی جا رہا ہے لاہور شہر میں, جہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کیونکہ بائیکاٹ اس لیے کیا گیا جہاں پہ لوگوں کو سزائیں ہوئیں وہاں پہ بائیکاٹ ہوا, یہاں پہ میاں اظہر صاحب کی انتقال کے بعد نشست خالی ہوئی, اس لیے یہاں پہ میدان میں الیکشن لڑا جا رہا ہے. آپ کی کیا ٹیک ہے اس پہ؟ جی, ایک تو دیکھیں انہوں نے کچھ نشستوں پر تو بائیکاٹ کا اعلان کر دیا, لیکن وہاں پر بھی کچھ ایسے امیدواران موجود ہیں جن کو پارٹی کی حمایت حاصل ہے. بالکل ایسے ہی, اور خیال یہی تھا کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پارٹی کہے گی کہ ہم نے اپنے امیدوار نامینیٹ کیے ہوئے تھے اور وہ جیت گئے ہیں. جہاں تک خوف کی بات ہے, اگر وہ اس کو بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر وہ پہلے والا نیریٹو غلط ہو جاتا ہے جو 2024 کے جنرل الیکشن میں تھا. اس وقت بھی خوف کی فضا تھی, اس وقت بھی انتخابی نشان نہیں تھا, اس وقت بھی لوگ مفرور تھے اور پولیس کے اس سے ڈر رہے تھے پکڑے جانے سے, گرفتاریوں سے, لیکن اس کے باوجود جو ووٹ ملے تو اس وقت ان کا نیریٹو کامیاب تھا اور لوگوں میں بک رہا تھا. یہ اس 1.5 سال میں یہ تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے. ایک تو جو آپ نے ٹرن آؤٹ کم ہونے کی بات کی, ضمنی الیکشنز میں ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ ہوتا ہے, لیکن اس میں بڑا ڈینٹ جو پڑا ہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو پڑا ہے. سر, جب ابھی جس طرح سوری ٹو کٹ یو آف 120 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج آ چکے ہیں جس میں 13,066 ووٹ لیے ہیں حافظ نعمان صاحب نے اور 8,127 ووٹ لیے ہیں آزاد امیدوار ارسلان احمد صاحب نے, تو یہ ٹرن آؤٹ ابھی تک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً کوئی 1 لاکھ سم تھنگ ٹوٹل ووٹ کاسٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا, جبکہ 2024 کے الیکشن میں یہ 200,000 کے قریب تھا. تو وہ 50% رہ گیا اس ٹرن آؤٹ سے جو 2024 کے جنرل الیکشن میں تھا. پی ٹی آئی کا ووٹر یا اس کا سپورٹر جو اس نیریٹو کے ساتھ تھا وہ پیچھے ہٹ گیا ہے, اور اس کی وجہ وہ پیچھے ہٹ گیا ہے. اس کی وجہ اس کی وجہ بھی نظر آتی ہے نا کہ اگر تو ہم صرف ڈر کی بات کریں تو وہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ 2024 میں بھی ڈر موجود تھا. اچھا, مظلومیت کی بات کریں تو اب مظلومیت زیادہ ہے پی ٹی آئی کے اپنے ووٹر کے مطابق کہ پی ٹی آئی کے بانی سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے, ان کے لوگوں کو ملنے نہیں دیا جاتا, بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی, بہنوں کو سڑک پر بٹھایا ہوا ہے. یہ تمام باتوں کے ساتھ مظلومیت والا فیکٹر اگر اس کو وہ بیچنا چاہ رہے ہیں تو وہ مزید بڑھ گیا ہے. کیا وہ بکا؟ نہیں بکا.
मैं ये कह रहा हूँ वो बिक नहीं रहा। अच्छा, वो इसलिए नहीं बिक रहा, उस्मा साहिबा हंस रही हैं। हाँ देखिए ना, एक लॉजिकल बात है, अगर आज टर्न आउट डिफरेंट होता और उनके वोटर बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर निकलते और ये वोट नज़र आता, अच्छा उसमें कोई ऐसी शिकायत होती कि हमें वोट डालने नहीं दिया गया, किसी को रोका गया, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। बड़ा पुरअमन पुरसकून सा माहौल रहा है पोलिंग के दौरान। तो वोटर के ना निकलने का मतलब ये है कि वोटर उस नैरेटिव को बाय नहीं कर रहा है जो 2024 में किया था। अच्छा वो क्या था, हम आज़ादी लाएंगे, हमें शऊर दिया है, और वो मजलूमियत वाला कार्ड। अब 1.5 साल में अगर लोगों ने परफॉर्मेंस की बेस पर अगर फैसला करना चाहा है तो मेरे ख्याल में कि ये पॉजिटिव जेस्चर है। पॉजिटिव जेस्चर। मैं ज़रा उस्मा साहिबा से एक सवाल कर लूँ, क्योंकि उस्मा साहिबा इस सारे सिनेरियो में मजीद इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं कि शी वॉज पार्ट ऑफ दिस पार्टी। इन्होंने इस पूरा स्ट्रक्चर को देखा है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी लड़ाइयाँ भी, मैं क्योंकि एक ज़माने में कवर करता रहा हूँ तो मुझे पता है कि बहुत सी लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी भी हैं, बहुत से इल्ज़ामात का इन्होंने सामना भी किया है, बहुत सी फ़ोन कॉल्स, ऑडियो कॉल्स पे भी इनको बहुत कुछ हुआ है। जब हालात मुश्किल होते हैं, ये बतौर सियासी वर्कर सवाल है ये कि जब हालात मुश्किल होते हैं तो पार्टी का स्ट्रक्चर, बी टीम लीडरशिप, सी टीम लीडरशिप, डी टीम लीडरशिप जो ग्राउंड लेवल तक मौजूद होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? देखिए बात सारी ये है कि इस पार्टी में किसी की कोई हैसियत नहीं है। बानी साहब हमेशा ये कहा करते थे कि एक ही चीज़ है जिसको तुम सेल कर सकते हो और वो मैं हूँ। तो उनके लिए किसी एमएनए की, किसी एमपीए की कोई हैसियत नहीं थी। ठीक है। अब जब पार्टी एक ही बंदे के इर्द गिर्द, वन मैन शो के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही हो तो नीचे आपको पता है कि धड़ेबाजी शुरू हो जाती है और हर कोई जो है अपना स्ट्रगल कर रहा होता है, सर्वाइवल की गेम चल रही होती है, क्योंकि हर एक के पॉलिटिकल स्टेक्स होते हैं। तो कोई भी जो है वो यहाँ पे इनकी पार्टी में कोई जिसे कहते हैं ना एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो या पॉलिटिकल ट्रेनिंग हो या ग्रूमिंग हो, ये नापैद है। ओके। और वो जो ढांचा थोड़ा बहुत था वो बिल्कुल वो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह वो बिखर गया है। अब इनके सवाए धड़ेबाजी के कुछ नहीं बचा, इनकी कोई तंजीम नहीं है ग्राउंड पे। दूसरे देखें, इनको एक बड़ा सुनहरी मौका मिला था सो कॉल्ड नया पाकिस्तान बनाने का। ना उन्होंने कोई अपना एक भी वादा मैनिफेस्टो का पूरा किया, ना ये अपनी पार्टी को कंट्रोल कर सके, ना ये कोई गवर्नेंस का जो है मॉडल पेश कर सके, और तो और अपने फैमिली को भी वो कंट्रोल ना कर सके। तो हर फ्रंट में उनको नाकामी उठानी पड़ी है, जिसकी वजह से लोगों का एतमाद जो है उसको बहुत बुरी तरह ठेस पहुंची है, क्योंकि लोगों ने एतमाद किया था और इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी हैं। पंजाब की हुकूमत को डिज़ोल्व कर दिया, केपी की हुकूमत को डिज़ोल्व कर दिया, नेशनल असेंबली को जनाब खड़े खड़े घर भेज दिया, और फिर अब बाइकॉट का ऐलान कर दिया और कुछ जगहों पे बॉयकॉट से क्या होना है। देखें ये तो अपनी नाकामी और नालायकी छुपाने का एक तरीका है ना कि जी हम वो तो मैदान छोड़ के भाग गए ना। बाइकॉट करना सियासी अखाड़ा, वो कहते हैं कि चाहे मुखालिफ कमजोर हो या तगड़ा हो, आपको सियासी अखाड़े में अपने दाव पे लगाने पड़ते हैं। आपने ये नहीं पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों नहीं थी? एक मिनट ये बता दें, ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि देखें ये बहनों की जब आपने बात की थी ना कि वो मजलूमियत का कार्ड, विक्टिम कार्ड, अब आप 3 करोड़ की गाड़ी से निकलते हैं, जाके आप थड़े पे बैठ के तमाशा लगाना शुरू कर देते हैं, 2-4 आपने कनीजें इर्द गिर्द आप बिठा लेते हैं, कोई पंखा झल रही होती है, एक वो आपने देखा था जो उसके कपड़े उठा के पीछे। मकसद है कि आपने इससे गेन क्या करना है सिवाय इसके कि आप मीडिया अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं। let's not go there, क्योंकि एक बहन भाई का रिश्ता मौजूद है। अगर एक भाई मुश्किल में है, मुश्किल हालात में है, तो बहनें बाहर निकलती हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। let's not get there। फिर आप एक डिकोरम के साथ रहे ना, कायदे कानून के मुताबिक चले। आपके जेल के जो कवायद हैं आप उसके मुताबिक आप इश्तिहार, मतलब आप अदालतों से भाग रही हैं, कई तो समन आपके आ गए अदालतों से, लेकिन आप पेश नहीं होती हैं, आप एक इश्तिहारी है ना फिलहाल। तो अच्छा, जिस चीज़ का नाम ही सियासी जंग है, जाहिर है उसमें सियासत हो रही होती है, वो हर सूरत में होती है। सियासतदान के हर काम में सियासत नजर आ रही है। मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो मजीद गुफ्तगू जारी रखते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़िम वेलकम बैक। हल्का NA 129 लाहौर में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त अपना स्टेक जो है उसको दिखा रही है, बता रही है कि हम ये इलेक्शन जीतने को तैयार हैं, जबकि दूसरी जानिब आज़ाद उम्मीदवारान मैदान में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये हल्का था, 2024 में भी हल्का उनके पास रहा, 2018 में भी हल्का उनके पास रहा। यहाँ से हमाद अज़हर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए, वफाकी वज़ीर बने, उसके बाद उनके वालिद यहाँ से रुकने कौमी असम्बली बने, साबिक़ गवर्नर पंजाब थे। उनकी इंतकाल के बाद ये हल्का, ये नशिस्त खाली हुई और अब यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। बहुत से हल्कों में पंजाब में ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट का ऐलान किया, लेकिन कहा गया कि जिन हल्कों में हमारे उम्मीदवारान को सज़ाएँ हुई हैं वहाँ पे बाइकआउट होगा। और ये वो हल्का है जहाँ पे क्योंकि मियां अज़हर साहब का इंतकाल हो गया था, इसलिए यहाँ पे इंतखाब लड़ा जाएगा। इस पूरे हल्के की गहमा गहमी हमने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी आपको दिखाई, रिपोर्ट की, बताया कि सिचुएशन क्या है, लोगों से बात की, लोगों की राय क्या थी, लोगों का टिल्ट किस तरफ था, वो भी आपको दिखाया। नॉर्मली तौर पे होता ये है कि जब ज़िमनी इंतखाबात होते हैं लोगों का नॉर्मल रुझान जो है वो जनरल इलेक्शन के मुकाबले में जो टर्न आउट है वो कम होता है, लेकिन इस मरतबा जो टर्न आउट है वो बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रहा है। अभी तकरीबन 120 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने हैं, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ रखने वाले हाफिज़ नुमान के 11,914 वोट हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद साहब 7,350 वोट लेके उनके पीछे मौजूद है। जबकि अभी मुझे अपडेट दी जा रही है कि जो नताइज हैं वो बढ़ चुके हैं। हाफिज़ नुमान साहब वो 14,653 वोट ले चुके हैं, जबकि अरसलान अहमद साहब 9,055 वोट हासिल कर चुके हैं। तो तकरीबन 4,000 से ज़ायद की लीड है इस वक्त। टर्न आउट कम है, लेकिन लीड जो है वो क्या इस कम टर्न आउट में इतनी लीड बरकरार रख पाएंगे हाफिज़ नुमान साहब? ये अभी कुछ देर बाद इसका फैसला हो जाएगा। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अली इस वक्त बाहर फील्ड में मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, नताइज का सिलसिला आ रहा है। मोहम्मद अली साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। इस वक्त क्या सिचुएशन है ओवरऑल NA 129 की? NA 129 के जैसे ही पोलिंग बूथ से जो नताइज आने शुरू, जो हमारे पास अपडेट आई है, एक तो 132 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका है NA 129 में, जिसमें मियां नुमान ने 14,653 वोट हासिल किए, जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा उसके मुताबिक, जबकि चौधरी असलान 9,055 वोट लेके दूसरे नंबर पे। ये आपको मैंने गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा बताया, लेकिन NA 129 का जो मार्का है वो बज़ाहिर तो लग रहा है कि नून लीग ने अपने नाम कर लिया। मियां नुमान का जो मरकज़ी दफ्तर है गुलशन राफी मेन पे, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद कारकुनों की पहुँच चुकी है। मुख्तलिफ जो से सियासी इनके कारकुन हैं वो भी पहुँच रहे हैं, ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद पहुँची है। यहाँ पे अभी कुछ देर कबल आतिशबाजी की और शेर है शेर के नारे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के जो नारे हैं वो यहाँ जो गूंजते दिखाई दिए। लाहौर पुलिस खास तौर पे आज सारा दिन इन तमाम पोलिंग बूथ की उन्होंने निगरानी की और पुरअमन जो इलेक्शन हुआ उसके बाद जो हतमी नताइज है वो आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू होंगे। लेकिन गैर हतमी नताइज के मुताबिक अब तक हमारे पास 334 में से 132 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें मियां मोहम्मद नुमान 14,653 वोट लेके। अच्छा मोहम्मद अली, ये भी बताइएगा कि आपने सारा दिन मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का विजिट भी किया होगा, अभी यहाँ पे आपके अतराफ में मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान भी मौजूद हैं, आप कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग आना शुरू हो गए, आतिशबाजी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है क्या? क्योंकि आपने जनरल इंतखाबात भी कवर किए, इससे पहले इस शहर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात भी कवर किए, इस ज़िमनी इंतखाब में और माजी के ज़िमनी इंतखाबात में क्या टर्न आउट का अभी तक आपको फ़र्क नज़र आया है या नॉर्मल ऐसे ही होता है? नहीं, ज़िमनी इंतखाबात में ना तो इतनी रौनक हमने देखी। अभी हमने ये देखा कि जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए हैं उसके मुताबिक जो पार्टी वर्कर्स हैं वो अपने लीडरान से मोहब्बत के लिए निकलते हैं। इस हल्के की मैं कुछ हिस्ट्री बता दूं कि मियां अज़हर जौन से थे उन्होंने 1 लाख से ज़ायद वोट लिए थे और बहुत बड़ी कादावर शख्सियत थी सियासत में। उसके बाद जैसे उनकी वफ़ात हुई तो ये सीट खाली हुई, जिसमें मियां नुमान ने नून लीग का टिकट लिया और उस पर उन्होंने बड़ी मेहनत की। 2 से 3 महीने हम देख रहे हैं कि जैसे ही उनकी वफ़ात के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसका इलेक्शन अनाउंस किया गया तो ये डोर टू डोर हमने देखा कि तमाम कारकुन, मैं ना सिर्फ नून लीग बल्कि जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी इस फील्ड में दिखाई दिए। रही बात जो इलेक्शन ज़िमनी है वो तो यकीनन जो सा वो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर इतनी रौनक नहीं होती। रात हमने देखा लेट नाइट तक तो रौनक शुरू हो चुकी थी, लेकिन सुबह टर्नआउट जो पहले औकात थे उसमें बहुत कम था। हमने देखा कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पे हमने जो हमने विजिट किया वहाँ पे हमें जो उनसे वोटर्स बहुत कम तादाद में दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही क्योंकि छुट्टी का दिन था, दोपहर 12 बजे लोगों ने नाश्ता किया, 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक जो सा वो कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद वोटर्स जोन से हैं, इन्होंने घरों से लोगों को निकाला, वोट आए
और लोगों ने वोट कास्ट किए, लेकिन ओवरऑल देखा जाए टर्नआउट मुझे अभी भी लग रहा है कि कम है, क्योंकि इतनी तादाद 14,000 9,000 कुछ ज़्यादा 4-5 हज़ार का फ़र्क है। अगर टर्नआउट ज़्यादा होता उसमें हम बहुत सारी जो सी वो कह सकते थे कि वोटर्स निकले हैं, लेकिन मुझे लग ऐसा रहा है कि जैसे ये फाइनल नतीजा इलेक्शन कमीशन देगा उसमें टर्नआउट कम दिखाई देगा। ठीक है, इलेक्शन क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में लोग जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, हमें अपडेट कर रहे थे। अब्दुल्ला मलिक साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। अब्दुल्ला साहब, 2024 में जब इस हल्के में इंतखाब होता है तो मुस्लिम लीग नवाज़ ये हल्का तकरीबन 30,000 के वोटों की लीड से हार जाती है। मतलब मियाँ अज़हर साहब यहाँ पे 1 लाख से ज़ायद वोट लेते हैं, जबकि हाफिज़ नुमान साहब उनके मद्दे मुकाबल थे, वो तकरीबन 71,000 वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये वही हल्का है, हाफिज़ नुमान तो वही कैंडिडेट हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे जो आज़ाद उम्मीदवार कैंडिडेट हैं वो अरसलान साहब है, जो कि रिश्तेदार हैं मियाँ अज़हर साहब के, हमाद के काज़न हैं, वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। जिस तरह रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं, ओवरऑल जो सिचुएशन सारा दिन समझ आई, सुनने में आई कि उस तरीके से इलेक्शन दूसरी सियासी जमातों की जानिब से नहीं लड़ा गया जिस तरह मुस्लिम लीग नवाज़ इलेक्शन लड़ी है। ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो ये कि बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है। आपको याद होगा कि इस हल्के से राना मशहूर साहब भी जीतते रहे हैं, फिर महर इश्तियाक साहब जो ईरानी बरादरी से तल्लक रखते हैं, मियाँ मरगूब साहब, वो ये बड़े इंपॉर्टेंट हल्का है। ये 2018 में इसकी ये तब्दील हो गया था। और अभी भी जो पीटीआई के 2 MPA मौजूद हैं, वाजिद साहब और मियाँ असलम साहब, वो भी जहाँ जीते हुए हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर जो आपने क्वेश्चन किया था उस्मा साहब से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या वजह है कि सियासी जमातें वोटर को बाहर नहीं निकाल सकी और टर्न आउट क्यों कम हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये कि एक अलमी है कि टर्न आउट वाकई बहुत कम रहा है, और ये टर्न आउट मेरे ख्याल जो अब बढ़ रहा है, ये भी 2 बजे के बाद जो वोटर निकले हैं वो पार्टियों ने निकाले हैं। ये जो टर्न आउट कम होना है, ये मेरा ख्याल है कि जो हमारे निज़ाम है जमहूरियत का, उस पर एक सवालिया निशान है। हमारी पार्लियामान पर भी, हमारी जुडिशरी पर भी, इस पर जो सियासी जमातें उन्हें सोचना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि PTI एक सियासी जमात है और उसको सियासी मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लाहौर का ये जो हल्का है ये उस हवाले से सीट खाली नहीं हुई थी जिस तरह के बाकी पंजाब में या दूसरी जगहों पर इलेक्शन हो रहे हैं। यहाँ पे तो मियाँ अज़हर साहब की वफात के बाद सीट खाली हुई थी, लोगों में सिंपैथी का भी वोट था। अगेन नाउ दिस, ये जो आप कह रहे हैं कि सिंपैथी का वोट था, तो सिंपैथी का वोट तो क्या कैश करवाया जाता है? नॉर्मली ये पंजाब का कल्चर ये है, पंजाब का ट्रेंड ये है कि जहाँ पे अगर किसी का वफात हो गई है तो उसका बेटा, भाई, बहन, रिश्तेदार या उसका उम्मीदवार वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होता है। इस पे मैं जवाब दूंगा, ब्रेक वापस आता हूं, तो यहीं से शुरू करेंगे कि यहाँ पे सिंपैथी वोट कैश क्यों नहीं करवाया जा रहा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ। नाज़रीन, वेलकम बैक। बात कर रहे हैं NA 129 के ज़िमनी इंतखाब की। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने मलिक साहब को एक सवाल छोड़ा था कि इसमें सिंपैथी वोट कैश क्यों नहीं करवाया जा रहा। मलिक साहब, देखिए, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि हुकूमत वक्त को जो है ना, उसको फिक्र होती है कि कहीं उनकी पॉलिसीज़ की वजह से या किसी और वजह से हमारा वोट बैंक कम तो नहीं हुआ या हम इलेक्शन हार तो नहीं जाएंगे, उनको फिक्र होती है। लेकिन जो अपोजिशन होती है उसे कभी भी नहीं होता। ये आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब के ज़माने में पंजाब में जो स्टेक्स तो इनके हाई होते हैं ना, गवर्नमेंट के, जी, वो उनको होता है कि उनकी पॉलिसी की वजह। देखिए, आपको याद होगा कि जब फ्लोर क्रॉसिंग पे जब बाई इलेक्शन हुए तो PTI ने भारी अक्सरियत वो इलेक्शन दोबारा रिटेन कर लिए थे। लिहाजा यहाँ भी अगर इलेक्शन PTI हार भी जाती तो कोई फर्क ना पड़ता। अगर गवर्नमेंट इलेक्शन हार जाती तो फिर शायद एक सवालिया निशान। आपके ख्याल से स्ट्रेटेजी सही नहीं थी? मैं जो अब आपका जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, वो जो जिस उस्मा फरमा रही थी नकादार साहबा, वो बिल्कुल सही कह रही थी कि PTI में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, बहुत ज़्यादा ग्रुप्स है। एक बड़ा अच्छा मौका उन्हें मिला था कि अपनी पार्टी को रिवाइव करते, और जो शिकायत 2024 के इलेक्शन में उन्हें दरपेश आई थी वो फिर एक अपना रोना भी रो सकते थे अवाम के आगे। देखिए, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, हमारे वोटर को तंग किया जा रहा है, हमें कैंडिडेट कंपेयर नहीं कर सकता। बहुत अच्छा मौका था एक पॉलिटिशियन के लिए, एक सियासी जमात के लिए। हम ये समझते हैं कि एनालिस्ट कि PTI ने जहाँ बहुत सारी और गलतियाँ की हैं, एक और ये गलती की है कि बायकॉट कर दिया इलेक्शन का। आपको याद होगा कि 1985 में मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी ने जब इलेक्शन का बायकॉट किया था तो अरसा दराज तक फिर उनको ये जो ना भुगतना पड़ा था कि बायकॉट का क्या नुकसान होते हैं। मैडम, मुझे ये बताएं कि अब एक तो इल्ज़ाम आपकी जमात पे ये लगता है कि वो कहते हैं ये अवाम में निकल नहीं सकते, ये बाहर जा नहीं सकते, ये बाहर जाएंगे तो उनको लग पता जाएगा। अब दूसरी तरफ ऐसा मैदान आपको ज़बरदस्त मिल गया कि दूसरी तरफ इलेक्शन का आधे से ज़्यादा बायकॉट है, फिर जहाँ पे इलेक्शन लड़ा चाहिए था, सिंपैथी वोट लेना चाहिए था, कैश करना चाहिए था, वो भी कैश
कैश नहीं कराया, ये क्या हो रहा है आपके साथ? हर तरफ हवाएं आपकी तरफ ही चल रही हैं। सुल्तान, मुझे लगता है आप इनके सोशल मीडिया के हत्थे चढ़ गए। आप भी उनको वही कह रही है, उसमें कह रही दो उसमें आपके पीछे पड़ रही है कि वो देखे ना, इनको स्पिन स्टोरीज में तो कोई, प्रोपेगेंडा में तो कोई बीट कर नहीं सकता। सच को झूठ, झूठ को सच इतना गुड़मुड़ करते हैं कि सारे लोग ट्रक की बत्ती के पीछे लगे होते हैं, और वो सब सोशल मीडिया के थ्रू होता है। फेक न्यूज़ हो जाए, आप डिस्टॉर्शन हो जाए, पगड़ियाँ उछालना, गाली गलौज, हर चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू इनकी, क्योंकि इनके ज़मीन पे तो कोई पाँव है नहीं। अब देखें ना, आप कह रहे हैं कि जो वोटर टर्नआउट कम था, देखें हमने तो बहुत मेहनत की है। सारी पार्टी जो थी वो मुतहर्रिक थी। 1 महीने से हाफिज़ नुमान जो हैं पहले भी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, उनके साथ पूरी तंजीम लगी हुई थी। तो हमने तो अपने वोटर्स को मुतहर्रिक किया है। इनका वोटर नाउम्मीद हो चुका है। वो इसलिए हो चुका है क्योंकि इन्होंने कुछ उनके लिए किया नहीं। अब क्योंकि देखिए लेट्स ना, बी रियलिस्टिक, 31,000 के मार्जिन से ये नशिस्त हाफिज नुमान साहब हार गए थे। 31,000 एक बहुत नॉमिनेबल और नोटेबल नंबर है, एक बड़ा नंबर है जिससे ये नशिस्त आपने हारी। और जिस तरह आप कह रही कि वो महीने से तो तैयारी अब कर रहे थे, यानी यहाँ से स्ट्रेटजी पूरी थी। उस वक्त इन्होंने सिंपैथी वोट लिया था, एक वो वेव आई हुई थी, और उससे इन्होंने सिंपैथी वोट लिया था। ठीक है, अब मुझे आप ये बताएं कि जो हमाद अजहर हैं वो किधर हैं? वो इस वक्त इश्तिहारी हैं, वो कानून से भागे हुए हैं, और उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं 9 मई के। तो ये जो सूरत हाल है, लोगों को समझ आ गई है कि हमारे बच्चों को इन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया, उनका मुस्तकबिल तबाह किया, और उसके बाद ये सब सीन से गायब हो गए। अब मरियम नवाज साहिबा के आने से आप यकीन करें, पहली दफ़ा पंजाब में मेरिटोक्रेसी आई है और ट्रांसपेरेंसी आई है। हर एक ये फील करता है, चाहे वो यूथ हो, तालिब इल्म हो, ख़ातून हो, मर्द हो, किसान हो, कोई स्पेशल लोग हों, कोई भी, वो समझते हैं कि हमें एक फेयर तरीके से हमें भी मौका मिलेगा कि हम भी ऊपर आएँ और हमारी ज़िंदगियों में भी बेहतरी आए। कोई मेरे तेरे वाली सियासत ख़त्म कर दी है मरियम नवाज साहिबा ने, क्योंकि हर चीज़ देखें, आपकी जो ये स्कॉलरशिप्स हैं, आपके जो ये लैपटॉप्स हैं, आपकी जो ये ई बाइक्स हैं, ये सारी ऑनलाइन और ये मेरिट पे दी जा रही हैं। केपी के बेचारे तालिब इल्म रो रहे हैं कि मरियम नवाज को खुदा के लिए हमारे पास ही भेज दे। वो सिंध वाले कह रहे हैं कि एक मरियम नवाज हमें भी भेज दे, हमारा क्या कसूर है? पैमाना हमेशा जांचने का तरीकेकार एक ही होता है, वो है इंतखाबात। आप इंतखाबी अमल में जाते हैं तो पता लगता है कि आपकी सियासी कारकर्दगी कितनी अच्छी थी या नहीं थी। उन्होंने अपना लोहा मनवाया है कारकर्दगी से, और उनकी कारकर्दगी मुंह से बोल रही है, उनको बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपके सामने है, सबको नजर आ रही है। एक चीज मैं जो कहना चाहता हूँ, हम भूल गए। देखिए 2024 के इलेक्शन में एक तीसरी जमात भी थी, वो टीएलपी थी। उसका भी, जो कि ये हल्का भी उनका है और उनका गढ़ भी है जी, 19,000 के करीब उन्होंने। जहाँ आपने बात की थी सिंपैथीज की, अगर वाकई पीटीआई या ये मियाँ बरदरान की फैमिली, क्योंकि बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं ईरानी बरादरी में भी, मियाँ अजहर साहब की फैमिली, अगर ये वाकई ही सिंपैथी का वोट लेना चाहते तो मेरे ख्याल टीएलपी का वोट बैंक इनको कैश हो सकता था। और उनमें एक गुस्सा भी था कि हमारे लीडरान के साथ जो कुछ हुआ है, तो वो मेरे ख्याल ये कैश नहीं करा सके। दूसरी बात ये कि देखिए, कभी भी कारकर्दगी की बुनियाद पर पाकिस्तान में वोट नहीं पड़ा। हमें याद है कि जब हमारी पीपल पार्टी की हुकूमत थी 2008 से 2013 तक, तो जरदारी साहब वो कहा करते थे, देखे हमने ये किया, वो किया, सुई गैस दी, बिजली, हमें वोट पड़ेगा। लेकिन वो 2013 के की बुनियाद पे वोट नहीं पड़ता। कैसे? मैडम फरमा रही है, नहीं मुझे कहने दे, आप जो कह रही है ना, देखें लैपटॉप, देखिए ये करके नहीं है, देखिए लैपटॉप देना, बाइक देना, ट्रैक्टर देना, देखो ये चीजें फरसूदा हो जाएगी। अभी हम बड़े मनसूबे बनाने हैं। देखना, आपकी 45% से ज्यादा आबादी आपकी गुर्बत से नीचे चली गई है। 7% अभी आप वो कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। देखिए, एक पैसा हमारा झेला नहीं आया है अभी जो डेवलपमेंट में। देखिए ना, ये हमें छोड़ना होगा। बड़े आपको राइट बनता है। आपको सेहत की जो इस वक्त सहूलत मिल रही है, जो आपको एजुकेशन में बेहतरी आ रही है, जो आप सड़कों, देखें 30
20 साल बाद सारे जो DHQs और BHQs हैं उनकी रीवैम्पिंग हुई है। आपको सब मुफ्त दवाइयाँ लोगों को, इंसुलिन जो हो जाए, वो जो डायलिसिस हो जाए, सब फ्री है आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। स्टेट ऑफ द आर्ट आपकी ट्रीटमेंट हो रही है। आपका जो ये ID कार्ड है ये आपका नेशनल ये हेल्थ कार्ड बन गया है। आपकी जितनी जो ये एजुकेशन का आप पैमाना देख लें कि पूरे जो वो तो कह रही है कि भाई हमने इतना आपका जबरदस्त वजीर काम जो है किया। राना सिकंदर, उसका अपना बच्चा जो है बिल्कुल है, वो वो कह रहे गवर्नमेंट भाई के इतना स्कूल अच्छा में काम पढ़ रहा किया, है। अगर ना क्योंकि किया अब होता तो उसकी- आप वोट दे रहे होते ना अच्छा, वो फिर वाले आप पे। क्लिनिक ऑन व्हील्स को देख लें, करोड़ों लोगों को मैडम उनका मौका उनके दे प्रोग्राम का doorstep प्रोग्राम पे बात और सुने, आप- देखिए आप बात सुनने में treatment दे रहे ऐप्स हैं। में बहुत अच्छा है, बिलीव करें इश्तहारों में ऐप्स में बड़ी अच्छी कारकर्दगी है, ओके। लेकिन कुछ इकदाम बाकी एक अच्छे सेकंड मैडम, एक सेकंड देखिए बात ठीक है। सुने। आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड मलिक साहब, जी। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है वो इश्तिहारों में बहुत अच्छी है, वो एप्स में बहुत अच्छी है, ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है। देन अगेन आप मेरा जाएं, बतौर आप- मैडम लेट मी फिनिश, मेरा बतौर तालिब इल्म ये सवाल है कि क्या सियासी जमातों की कारकर्दगी का पैमाना इंतखाब नहीं है, या कोई और पैमाना आप समझते हैं कि कोई और पैमाना है जहाँ से जज किया जाएगा? 1 लाख घरों का लोन मिल चुका है लोगों को। बिल्कुल मैडम, एक सेकंड ये कह रहे हैं कि ऐप पे चल रहा है। मुझे समझ 30 एक सेकंड, लेट हिम आंसर, लेट हिम आंसर। 30,000 तालिब इल्मों को पहले और 30,000 मैडम को वक्त खत्म हो बाद रहा है प्रोग्राम का, मुझे देखिए, इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आपके स्कॉलरशिप मिल चुके हैं। आप कह रहे हैं कि जी ये ऐप पे हो रहा है। सियासी अब मुझे समझ नहीं आ रही कि देखिए, क्यों आप इस तरह की बातें उस्मा करते साहिबा, हैं। प्लीज। जब आप ग्राउंड पे देख रहे हैं, देखिए सियासी आपकी लोग देख रहे हैं। आपको इलेक्ट्रो बसेस नजर नहीं आ रही चलती मैडम हुई। आपका मौकफ तो पेश आपकी हो गया, 10 प्लीज लेट डिस्ट्रिक्ट्स हिम में आंसर। इलेक्ट्रो बसेस चल रही हैं। सुन तो लें प्लीज वो ऐप पे तो नहीं चल मलिक रही साहब। है। इसमें कोई शक नहीं है, आपकी सड़कों इसमें पे चल कोई रही शक है। नहीं है कि सियासी जमातों की पैमाना उनकी जो मैनिफेस्टो होता है वो होता है, लेकिन आज तक हमारी सियासी जमातों के जो मंशूर होता है उसका कभी ऑडिट ही नहीं हुआ कि उन्होंने अपने इलेक्शन में क्या मंशूर दिया था। तो यही देखिए तो देखिए मंशूर तो follow कर ये रहे हैं। ये देखिए ये सारे- ये जो इकदामात ये ये सारे जो इकदामात ये हैं, ये लीडर नहीं मंशूर पे इकदामात based करते, है ये सारे। पॉलिटिशियन सर, ये तो करते जनरल हैं। ये अगले इलेक्शन को जीतने के लिए इस आपकी किस्म के सेहत, इश्तहारात आपका दिए जाते हैं, education, एक आपका गुडविल बनाई जाती है। infrastructure, आप मुझे हर ये चीज़ बताएं कि आपकी पंजाब जो है में manifesto में mentioned है। आपने कितने कमाल मंसूबे ऐसे है। लगाए हैं जिससे हमें पता अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, खत्म अब्दुल्ला साहब, अब ये हुई है। देखिए ना तनकीद बाकी बनाए, नहीं, तनकीद अच्छी नहीं बात है, नहीं होती तनकीद है। नहीं है। तनकीद हम बनाए। चाहते हैं ये उनके मलिक साहब नाकिस- क्या नाकिस इससे के पहले, बाद एक सेकंड में मैडम, इन्होंने इससे बहुत पहले इससे पहले यहाँ पे पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब थे, अब मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब है। अगर सियासी पैमाना ये नहीं है तो क्या इस वक्त दूसरी सियासी जमातों को भरपूर तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था? देखिए बात सुने, इस सूबे में एक खानदान की पिछले 40 सालों से हुकूमत है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसमें यही नाकाफी है, डेवलपमेंट ही नहीं होने वाली। ठीक है। ये किसका काम है? पहली बात सुने, ये जो कुछ काम हो रहा है ये हमारे कानून में जो हमारा आर्टिकल क्या आपके ख्याल से है, मुझे बस ये प्रोग्राम का मकामी वक्त खत्म हो गया। ये मकामी हुकूमतों का काम है। बिल्कुल ये है। हुकूमत क्या नहीं है। सिर्फ ये बता दें कि आपके ख्याल से स्ट्रेटजी इलेक्शन लड़ने की सही थी? मेरे ख्याल है गलत गलत थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आज के प्रोग्राम से सुल्तान चौक दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।